cost of one energy complex will amount to no more than 4-6% of the building cost. Here is comparison of the better wind farm with wind farms of the classic type. Harmony with existing buildings and the environment. The possibility of placement directly in an urban environment. There is no energy loss. Remoteness from inhabited places. Infrastructure costs. Losses of 7% of energy when transmitting over distances. Safety. No noise. Low-speed design ensures noiselessness. There is no infrasound. The presence of intense noise up to 70 dB and infrasound, which has an adverse impact on the nervous system of living creatures. Power generation is possible at wind speeds of 4 meters per second. The possible height of the building is more than 190 meters. Ability to use gravity energy storage. The possibility of airflow concentration. The larger the area of the plates, the more energy. Airflow direction is carried out along a tangential line to the rotation circle of the blades. Workability doesn't depend on wind direction. Speed of rotation is 4-7 revolutions per minute. Vibrations are excluded. Here is application possibilities. Energetics is ready to make a step into the future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom gave the start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations, Denise. There is an opening idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. Wherever the wind blows from the wind stream would get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up.
This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Your business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Peter Project. वेलकम सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। ऑलराइट, और मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही एक चीज देखने में आया है कि अभी सर्दियां होने लग गई हैं, राइट। तो अभी 9 बजे लोगों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा लेट कर रहा है सेशन को। ओके, घर वाले भी चिल्लाते हैं कि सेशन को इतना ज्यादा लेट कर देते हैं, हम लोगों को सोने में डिस्टरबेंस होती है। तो सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है बॉस कि हम लोग 1 दिसंबर से अपने सेशन को 1 घंटे पहले शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि 8 बजे शुरू करेंगे और 9 बजे उसको खत्म कर देंगे। तो ये सभी के लिए एक अच्छी न्यूज है, राइट। जिनको भी ऐसा लगता है कि सेशन बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट होता है और फिर कभी कभी जब स्ट्रेच आवर चलते हैं तो वो 10 बजे की जगह पे 10:30 तक भी पहुंच जाता है। ओके, तो विपुल जी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस सेशन को हम लोग 1 दिसंबर से, ओके, आज 26 हो गया है, 4 दिन और हैं। ओके, 1 दिसंबर से हम लोग इस सेशन को 8 बजे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और वंस अगेन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कुछ खास चीजों के लिए मैं आज का शेड्यूल बताना चाहूंगा कि आज हम लोग किस तरीके से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमेशा की तरीके से पहला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, जो भी हमारे नए गेस्ट हैं, राइट। क्योंकि अब टीम डेवलप हो रही है, नए नए लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नए नए लोग सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रेजेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे पहले, अब आगे आने वाले 4 दिन में हम लोग पूरा का पूरा रिपीट ऑर्डर में हम लोग कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग करेंगे। कैसे
प्रेजेंटेशन के साथ में किसी दिन बैक ऑफिस, किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, किसी दिन केवाईसी, या किसी दिन शेयर पैकेज, किसी दिन पेमेंट सिस्टम। इस तरीके से हम लोग मिक्सअप करेंगे। तो आज प्रेजेंटेशन के बाद में आज हम लोग केवाईसी वाला पार्ट करने वाले हैं। ओके, क्योंकि विदाउट केवाईसी, राइट, विदाउट केवाईसी आपकी जो खुद की जो प्लेसमेंट्स है, आईडीज है, या फिर जो आपका विटर अकाउंट है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जब तक आप उस पर केवाईसी नहीं करते। ओके, और उस बीच अगर किसी के हाथ अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो वो उसको अपनी आईडी क्लेम करके, मतलब अपना केवाईसी कंप्लीट करके वो खुद से ले सकता है, ऐसा भी है। ओके, फिर बाद में फिर दिक्कत हो, उससे अच्छा ये है कि हम लोग समय रहते अपनी आईडीज पर केवाईसी भी करना लोगों को सिखाएंगे। ओके, और साथ में कुछ अपडेट्स हैं, अपडेट्स पेमेंट्स को लेके, राइट, या फिर यूं कहें कि किस तरीके से हम लोग आगे बड़े बिजनेस की तरफ मूव ऑन करें, किस तरीके से अपना बड़ा बिजनेस हम लोग तैयार करें। ओके, ये 2-3 टॉपिक है, वन बाय वन हम लोग इस को फॉलो करेंगे, राइट। और अभी हम लोग 43 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, और इन 43 में से जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, जो आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, वो अपना एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, दिख तो रहे हैं मुझे नए नए लोग, राइट, लेकिन जो लोग हैंड रेज करेंगे उससे अच्छा रहेगा कि कौन कौन लोग आज पहली बार, कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहली बार आज जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। प्लीज, यस, विशाल, चंद्रसी जी, मोस्ट वेलकम। और भी कोई अगर हैं तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड, जस्ट अ मिनट। विजय असालवे जी, मोस्ट वेलकम सर, राइट। कोई और भी है तो प्लीज वो एक बार अपने हैंड रेज कर दीजिए, जो भी आज सिस्टम के अंदर पहली बार। यस, मिस्टर रियाज, मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड। ओके, तो अभी देख लेते हैं, राइट, जो हमारे कोस्ट हैं मिस्टर विपुल जी तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, राइट, और प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ओके, कितनी ऑथेंटिसिटी है, तो वो सब चीजें भी हम लोग वन बाय वन चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसकी जो लीगल्स की अगर हम बात करें, राइट, कि भैया कहाँ पर रजिस्टर्ड है, क्या सर्टिफिकेट है उसके, कहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जब हम अपना बैक ऑफिस को लॉगिन करते हैं ना, उधर एक डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, DOCS, डॉक्स, उधर जाकर हमें हमारे सारे रजिस्ट्रेशन, ओके, यहाँ तक कि जो जो हमारे प्री IPO शेयर्स हैं, ओके, उसका भी एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जॉइंट स्टॉक कमेटी, GSC एनर्जी 2020 का एक गवर्नमेंट बॉडीज है जिसने इसको अप्रूवल दे रखा है, वो सर्टिफिकेशन भी उधर है, राइट। तो ये बेसिकली एक अलग डिफरेंट सेक्शन है ऑथेंटिसिटी का, लीगैलिटीज का, राइट। उस पर भी हम लोग कभी फुर्सत में बहुत अच्छे से बात करेंगे, जहां पर हम लोग पूरा का पूरा सेशन कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो अभी टाइम है विटर पावर प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन करने का। तब तक के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इन बिटवीन आप जिसको भी इनवाइट कर सकते हैं आज के सेशन के अंदर, प्लीज आप इनवाइट कीजिए, राइट, और विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को आप देखिए, समझिए। विपुल जी, प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आप सभी लोगों को तहे दिल से आज के दिन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेशन की, तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। और सबसे पहले आज की समय, जो कीमती समय आप लोग यहाँ लेकर के बैठे हैं, तो वो कीमती समय आपका जायज पूर्ण तरीके से आपका मार्गदर्शन करे, सहयोग मिले, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, राइट। आप डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगला 15 मिनट 16 मिनट आपको जो चीज़ मिलने वाला वो है विटर पावर प्रेजेंटेशन की, वो है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करता है और हमारी कैरियर क्या है। तो हम बात करेंगे दुनिया के अंदर। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। आज इस सिस्टम की मैं बात करती है, तकरीबन हम लोग करीब 7.5 महीने पार कर चुके हैं, मगर हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो एक एनर्जी का सेक्टर है।
इसके अंदर जितना हम तहे दिल से, जिसके अंदर जितना हम अंदर जाते जाएंगे उतना ही हमें नई तरीके की चीजें मिलती जाएगी। तो हम जिस सिस्टम की बात करें वो सिस्टम है दुनिया के अंदर दी एरा ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज, दो फ्री यानी कि कार्बन के माध्यम से कार्बन फ्री एनर्जी का एक नया प्रारूप है, जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है और दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम लोग जान पाएंगे। तो जिसका नाम है वीटर। एक्चुअली इस सिस्टम की शुरुआत रूस से शुरुआत हुई है, नवास्की ब्रिज से इनकी शुरुआत हुई है। और इस टेक्नोलॉजी की जो खासियत है 2018 की इसकी नींव रखी गई है और पूरी दुनिया के अंदर करके अपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये टेक्नोलॉजी, माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो देखते हैं ऐसी क्या खास बात है जिससे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फायदा इसमें किस तरीके से मिलने वाला है। तो एक एरा ऑफ कार्बन एनर्जी किस तरीके से हमारी मार्केट को एक नई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक नया जरिया हमें देने वाला है। हमें इस सिस्टम की बदौलत हमें बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने वाला है, तो इसके अंदर 3-4 फंक्शन है जो हमें पूर्ण तरीके से हमें यहाँ पर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाएगा, जिसके तहत हम लोग बहुत कुछ यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस टेक्नोलॉजी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो दो चीज पे आधारित है। पहला क्या है? हवा। दूसरी चीज है चुंबक। और ये दो चीज के माध्यम से एक नई तरीके के मिशन बनाया गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि द एरा ऑफ कार्बन का एक नया प्रारूप है। इससे क्या सिस्टम, क्या फायदा होगा? हवा और चुंबक इन दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और उनके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जिस तरीके से पोल्यूशन हमारे बढ़ता जा रहा है उनको ग्लोबल यानी कि कार्बन का मतलब क्या होगा, एक तरीके की इनकी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है तो उनको रोकने के लिए कोई भी उपाय किसी की गवर्नमेंट के पास में नहीं है। मगर इस टेक्नोलॉजी की बदौलत जहां पर भी ये लगाई जाएगी तो आप ये मान के चलो कि आसपास के दायरे में वहां पर हर जगह पर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी की बदौलत उसको हम लोग धीरे धीरे करके कम करवाएंगे। यानी कि इन्वायरमेंट को पूर्ण तरीके से ठंडा करना इसका इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा परोपकारी साबित होने वाला है। दूसरी खास बात इसके अंदर है टेक्नोलॉजी। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है कि दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत दो चीजों के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सबसे पहला क्या है? हवा। हवा के माध्यम से, और दूसरा है मैग्नेट के माध्यम से। तो इन दोनों के माध्यम से एक ऐसी चीजें क्रिएटिविटी की गई है जिसके अंदर 3 तरीके की यहाँ फंक्शन देखने को मौका मिलता है। नंबर 1, इसका जो इनोवेशन है क्या हमें सिखाता है। दूसरी चीज का सिद्धांत क्या है। दूसरा, ये काम कैसे करता है। तीसरा, इनका टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो अंदर इनोवेशन है वो किस चीज का है, वो किस तरीके का प्रारूप का बनाया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सिद्धांत यह है कि पर्टिकुलर इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए धरती से तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई की हाइट तक भी इसको खड़ा किया जा सकता है। मगर इस टेक्नोलॉजी की खास बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस पैराग्राफ के अंदर, जिस डायमीटर के तहत इनको बनाया गया है, तो सबसे बड़ी जो क्रियाकलाप जिनकी तकनीक है वो तकनीक इसकी पंखुड़िया के अंदर है, इसकी पंखा के अंदर है। और जिस शेप के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है और जिस शेप के अकॉर्डिंग ये बना करके खड़ा किया गया है, यही पर सबसे बड़ी इसकी कलाबाजी है। इसमें सबसे बड़ी खास बात और भी एक है कि कम हवा के अंदर भी इसकी नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पंखुड़ियां इसमें लगी हुई है, जो पंखा लगा हुआ है, तो कम हवा के अंदर भी इसकी जो विंडो साथ में लगी हुई है वो विंडो एक ऐसा मार्गदर्शन प्लस इतनी ज्यादा हवा को कंसंट्रेट करता है कि कम हवा के अंदर पंखुड़िया को ऑटोमेटिकली यहाँ घुमाता है। और कम हवा के अंदर जैसे ही यह रोटेट करता है तो कम हवा के अंदर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये सिस्टम इनकी 5 पॉइंट के अंदर सारी खूबी समझाई गई है कि किस तरीके से इनके अंदर प्रेशर, हवा का प्रेशर बना करके इसकी अंदर की पंखुड़िया घुमाया जाएगा और उसके तहत जैसी पंखुड़िया घूमेगी तो उसके तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये सब खूबी इसके अंदर छुपी हुई है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पंखुड़िया, जैसे ये प्रारूप जो मैं ऊपर वाला दिखाया, ये अंदर वाला पार्ट इस तरीके से रोटेट करता है और हवा जैसी इसके अंदर एंटर हुआ तो उस हवा के तहत यहाँ पर पंखुड़िया रोटेट करने लग जाता है। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट रोटेट करता है, ये केवल एक पार्ट नहीं, पूरा की पूरा पार्ट रोटेट करता है, घूमता रहता है, जिसके तहत इनकी नीचे वाला पार्ट
जो पूरा के पूरा जो बेसमेंट वाला पार्ट है, इसके साथ में जो मैग्नेट लगा हुआ है, तो वो उनके साथ में रोटेट और फ्रिक्शन पैदा करता है। फ्रिक्शन, प्लस माइनस का फ्रिक्शन पैदा करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। इनका वर्किंग इस तरीके से होता है। वर्किंग करने के बाद में इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें ये सिखाता है कि जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो केवल एक चीज पे आधारित नहीं है, केवल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नहीं खड़ा किया जाएगा। इसके साथ में रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है वो भी इनके साथ में खड़ा रहेगा। तो क्या होगा, बीच वाला जहां चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट रहेगा, बीच में इनकी टेक्नोलॉजी रहेगी। तो क्या होगा, दोनों पार्ट के बदौलत केवल बीच वाला जो आप यहाँ रोटेट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक घूमता नजर आएगा केवल हवा की वजह से। और जिसके तहत बेसमेंट में जो भी यहाँ मैग्नेट वाला पार्ट लगा हुआ है बेसमेंट के अंदर, तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसी के माध्यम से सप्लाई, इसी ग्रिड के अंदर सप्लाई ऑटोमेटिक इस सिस्टम के बदौलत यहाँ पर सप्लाई का भी पार्ट रहेगा। यानी कि जितना पावरफुल टेक्नोलॉजी, जितना बड़ा स्टैंडिंग के तौर पे हम इसको खड़ा करेंगे, तो 50% हमारी इस टेक्नोलॉजी के बदौलत इस ग्रिड के चारों तरफ से जो भी रियल एस्टेट का पार्ट्स रहेगा उसके अंदर वो सप्लाई की जाएगी। बाकी पार्ट इसका अलग जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी 50% उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के बदौलत, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर भी सप्लाई की जाएगी। यानी जितना हाइट के अकॉर्डिंग इसकी जो टावर बनाया जाएगा, जो इस सिस्टम को खड़ा किया जाएगा, तो तकरीबन इसके अंदर 200% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी होगी। तो 50% इनके आसपास में जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा वो उसके अंदर ये 50% इसके अंदर सप्लाई रहेगी, बाकी का 50% अदर पार्ट्स के अंदर इसका सप्लाई रहेगा। तो ये 3 ग्रिड के अंदर, 3 सिस्टम के अंदर इसका पूरा का पूरा ये टेक्नोलॉजी खड़ा किया जा रहा है। इसके अंदर सिद्धांत मैंने बता दिया काम कैसे करता है और ये टेक्नोलॉजी क्या है। ये और गहराई पे जाएंगे तो बहुत कुछ और भी छुपी हुई है, मगर कैसे काम करता है, किस तरीके से दुनिया में नाम होने वाला है, इसको हम लोग अगले पीढ़ी में जानते हैं, अगले सिद्धांत में हम जानते हैं। इसको लगाने की जो पॉसिबिलिटीज है, लगाने का जो सिस्टम है, तो दुनिया में हम हर जगह पे लगा सकते हैं। ये गवर्नमेंट, पब्लिक, हर जगह पे इनकी डिमांड है और हर जगह पे इनको हम लोग लगा सकते हैं। ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं कि गवर्नमेंट ही इसको अलाउ करेगी तभी हम लोग लगा पाएंगे, ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी हर जगह पे हम इसको लगा पाएंगे। इस तरीके से इनका पार्ट्स रहेगा कि कैसे कैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो या बड़ा बड़ा किसी भी डायमीटर के तहत इनको हम लोग स्ट्रक्चर के तहत हम लोग खड़ा कर पाएंगे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का डायमीटर के तौर पे कहाँ पे किस तरीके से खड़ा करना है। ये डिपेंड ये करता है कि कौन किस लोकेशन में किस तरीके से खड़ा करना चाहता है। ये केवल कुछ ही शेप आपको समझाया गया है। इस तरीके से बहुत सारी पैरामीटर सिस्टम और स्ट्रक्चर आपको आने वाला टाइम के अंदर आपको दिखने वाला है। हवा हर जगह पे है तो इस टेक्नोलॉजी के हर जगह पे लगाई जा सकती है, क्योंकि और एनर्जी की जरूरत हर दुनिया को है, तो डेफिनेट है कि इसको भी हम दुनिया के अंदर हर कोने पे लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकोमोडेशन इज पॉसिबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर हर जगह पे इनको हम लोग पॉसिबल के तौर पर लगा सकते हैं। ये एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, तो ये केवल आपको ये चीज समझाया गया है कि इनका तो अभी छोटा सा प्रारूप है जो हम आपको प्रोटोकॉल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो केवल वही वाला पार्ट जो मैंने आपको अभी समझाया, बीच का रॉड है, हवा के माध्यम से रॉड के चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी हुई है। जैसे ये घूमता है तो चारों तरफ से इनके साथ में कनेक्टेड यहाँ पर लाइट है। जैसी ही पंखुड़ियां घूमती है तो मैग्नेट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी के जैसे ही जनरेट होता है तो आपको चारों तरफ से ये लाइट आपको दिख रही है जलता हुआ। तो एक छोटा सा प्रोटोकॉल है जहां पर आप एनालिसिस कर सकते हैं किस तरीके का फीचर। बड़ा प्रारूप डेमो का भी इस तरीके से, डेमो के साथ में प्रैक्टिकल में भी यही चीज होने वाला है। ये बैक ऑफिस का पार्ट है जहां से हम लोगों ने आपको जूम करके सेशन का भी दिखाया था पार्ट, किस तरीके से इनका वर्किंग पार्ट्स किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, कैसे बनाया जाता है। तो सारी चीजें हम लोग लाइव सेशन आपको जूम करके भी हमने आपको यहाँ पर बैठ करके जूम करके भी दिखाया था। ये इनकी जो सबसे बड़ी जो और खास बात मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी में सबसे बड़ी खास बात है कि कितनी भी आंधी तूफान मेंटेनेंस की मैं बात करूं, तकरीबन जितनी भी प्रोजेक्ट अभी मार्केट के अंदर है उसके अकॉर्डिंग करते हैं 200% की सस्टेनमेंट ज्यादा है। और इसके अंदर जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनाया गया है तो इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर है। और कितनी भी यहाँ पर आंधी तूफान आ जाए मगर यहाँ पर इसकी जो मेंटेनेंस चार्ज होगी वो ना के बराबर हो।
इन सब चीजों को देख करके बहुत ही प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी ये दुनिया के अंदर साबित होने जा रही है। ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बनाने वाले, जिसकी मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर डेनिस डेनिस द ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी, मिस्टर डेनिस टैगडियन। मैं इसकी सबसे बड़ी खास बात बताना चाहूंगा कि सर का विजन मिशन बहुत क्लियर है। दुनिया के अंदर इनका विजन मिशन बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरीके से है कि इनका जो उद्देश्य है कि दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है, हम लोग इस सिस्टम के माध्यम से, ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दुनिया के अंदर एक नया चीज देना चाहते हैं। और इनके तौर पे 80% इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है हम लोग इस सिस्टम के तौर पे हम लोग करना चाहते हैं। जो इनका वेन विजन में है, इनका मिशन के तौर पे ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उनको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से खत्म किया जाए। इन दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ये लोग इसके लिए पूरी तरीके से अपनी मेहनत झोंक करके रात दिन एक कर चुके हैं और उसके विषय मेहनत भी कर रहे हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टोटल के टोटल ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर जो जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अधिकतर उसमें से सब पैटेंट का फाइल लगी हुई है और पैटेंट काफी इसका पार्ट्स पैटेंट है। और बाकी जो कंट्री का जो पैटेंट लेने की बात है, 75 कंट्री के अंदर पैटेंट की तैयारी चल रही है। इसके अंदर काफी कंट्री के अंदर इसका पैटेंट का फाइल मिल भी चुका है। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट मैंने आपको बताया, हाउ टू कॉमन बी कॉमन। हम लोग जो यहाँ पर है, टोटल हमारे पास में 314 बिलियन टोटल हमारे पास में शेयर है, प्री आईपीओ शेयर है। तो 314 में से केवल 10% इसमें को ओनर बनने के लिए हम लोग केवल यहाँ को ओनर के लिए केवल 10% ही इसके लिए हम लोग को ओनर बनेंगे पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि 31 पॉइंट समथिंग बिलियन जो लोग इस शेयर को बाय करेंगे वही लोग को ओनर के फायदा ले पाएंगे। तो को ओनर का मतलब क्या हुआ, जो भी लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो बाय का मतलब जब भी इसका प्रोजेक्ट लगेगा, लिस्टिंग जब भी हो, लिस्टिंग हो सकता है 2025 या 26 को, जब भी लिस्टिंग होगा तो उससे पहले जब भी ये प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा, लिस्टिंग से पहले जो प्रॉफिट होगा प्रोजेक्ट को लगाने के बाद में, तो जिनके पास में जितना शेयर है, पहले एक शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी, जितना पैसा फायदा होता है उस फायदे के अकॉर्डिंग आपके पास में जितना शेयर रहता है उसके साथ में गुणा करके आपको प्रॉफिट का हिस्सा भी यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा। तो हाउ टू बिकम ए को ओनर, हम लोग को ओनर के रूप में ये 10% लोगों की दुनिया के अंदर एक शह मालिक के रूप में हम लोग पूर्ण तरीके से इनके साथ में यानी कि को ओनर के हिस्सा हम लोग लेने के हकदार रहेंगे। ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो दुनिया के अंदर बाकी जितने 314 बिलियन में से केवल 10% लोगों के लिए ही केवल ये सिस्टम रखा गया है। इसके बाद में रही डिविडेंड फंड की बात है। डिविडेंड फंड जब ये लिस्टिंग होगा, डिविडेंड फंड उसके बाद का प्रोसीजर है। और लिस्टिंग के बाद जैसे इनका डिविडेंड फंड, जब तक आपके पास में शेयर रहेगा तब तक आप यहाँ डिविडेंड फंड भी ले पाएंगे। तो इसके अंदर और भी मॉडल है फ्रेंचाइजी का, वो अभी डिक्लेयर नहीं है, उसके बारे में हम बाद में धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे। ये बहुत प्रॉफिटेबल वाला सिस्टम है, वे है। इसके पीछे कारण क्या है कि दुनिया के अंदर वीटर एक बहुत ही एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम की जो डिमांड है वो एनर्जी का डिमांड सबसे ज्यादा क्रिएट होने वाला है। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का, गाड़ी और भी बहुत सारी चीजें मार्केट में आ रही है, तो डेफिनेट है कि हमें उन चीजों को देख करके ये लगता है कि जिस तरीके से आज की डिमांड है, तो 2027 के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है 2027 से 30 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है तकरीबन इससे दुगनी हो जाएगी। जब दुगनी होगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाना होगा? तो हमारे पास भी जो जरिया है जिससे यदि इसके ऊपर डिपेंड रहे तो हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में जरिया है हवा। हवा के माध्यम से यदि बिजली पैदा होने लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ना खत्म होने वाली चीज है हवा। तो दुनिया के अंदर ये बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा। तो जिसको देख करके ये क्लियर हो चुका है कि ये दुनिया के अंदर जिस तरीके से अब तक मार्केट में जो भी चीज डिमांड की वजह से अपनी कीमत बढ़ाई है और ना नेम एंड फेम लोगों ने कमाया है, तो उन चीजों को देख करके ये डेफिनेट है कि आने वाला टाइम के अंदर वीटर दुनिया के अंदर अपनी परछाई छोड़ के जाने वाला है। जो शेयर की कीमत अभी आप कौड़ी के भाव में देख रहे हैं, तो आने वाला टाइम के अंदर इसके डिमांड के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, हो सकता है कि आपको $10, $20, $50 भी ये शेयर आपको देखने का मौका मिले, और वो भी ज्यादा दिन आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका ये प्रोजेक्ट न्यूज है, जिस तरीके से ये लगाया जा रहा है, किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज काम चल रहा है, 2023 के बीच में क्या होने वाला है और 2022 और 23 के बीच में क्या होने वाला है, ये सारी चीज यहाँ पर एक एक करके पार्ट यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके से इनका 14.2 स्टेज के अंदर इनका टोटल शेयर खत्म हो जाएगा। और ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है जिस तरीके से पीछे बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस तरीके से पूरा बैक ऑफिस टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजें ये इनके ऊपर
जिम्मेदारी है जो बखूबी तरीके से लोग निभा रहे हैं डेडिकेशन के साथ में। हम लोग तकरीबन इसमें से सभी लोगों के साथ में हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। जो भी यहाँ पर आप बैठ रहे हैं, जो देख पा रहे हैं आप, सभी लोगों के साथ में हमारी पर्टिकुलर एक एक सिंगल हमारी मीटिंग हुई है। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का इनका विजन मिशन मुझे जानना बहुत जरूरी था कि ये वाकई में दुनिया में किस तरीके से, किस सोच के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं। जब इन लोग भी इसकी विजन मिशन हम लोग को पता चला तो हम लोग और भी ज्यादा यहाँ पर फेथफुल हो गए, क्योंकि जब तक किसी इंसान का विजन मिशन पता नहीं होता है तो हमें ये पता नहीं होगा इस इंसान के साथ में मैं क्या काम करूं। तो जब इनकी वो पॉइंट मेरे को मिला इन सब चीज लोगों के बीच में, तो मैं हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुए और उसके बाद में पूरी दिन हम लोग रात दिन एक कर चुके बिजनेस के लिए। ये सुपरवाइजरी कमेटी है, आप लोगों का नाम कमाने के बेहतरीन रास्ता सुपरवाइजरी कमेटी। अभी जो लोग भी आप यहाँ कमेटी के अंदर देख रहे हैं, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग अभी पूर्ण तरीके से डेडिकेशन के साथ में लगे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे होंगे, मगर मौका उन लोगों के लिए है जिंदगी भर जो लोग अभी पूरी तरीके से वीटर को समझ चुके हैं। उनके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य साबित होने वाला है। यदि यहाँ पर छटनी हो गई तो छटनी यदि एक बार यहाँ निकल गया, और जो लोग अभी डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर नाम एंटर हो गया, ये मान के चलिए आपका नाम जिंदगी भर यहाँ से हटने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग लकी भी, वाई लकी भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो काम नहीं करते मगर वाई लकी यहाँ पर आ जाते हैं शुरुआती के दौर में। मगर यहाँ पर स्टेबल रहना बहुत बड़ी बात है और यही लोगों का नाम जिंदगी भर आप लोगों का रहने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि अभी इनकी शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोग भी यहाँ पर आने की कोशिश करें और अपनी टीम को शानदार तरीके से मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। इसलिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये सारी चीजें अभी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट था और सारे सिस्टम मैंने जो आपको डिलीवर्ड किया है तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत स्पेशल पार्ट है। तो मैं दोबारा करके इस पॉइंट के साथ में, क्योंकि आज हमारा केवाईसी का ही पार्ट है, इसके बाद हमारे एफिलिएट का भी पार्ट है, तो केवाईसी के बाद में मोहित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके साथ में एफिलिएट वाला पार्ट है वो भी 2 मिनट के लिए आप लोगों को जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा और केवाईसी प्लस एफिलिएट वाला पार्ट हमारे मोहित जी के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। So please Mohit, come on the stage and take your part. Thank you. All right. वेरी गुड, थैंक यू विपुल जी। राइट, ओके, आप बने रहिएगा। मैं आज एक केवाईसी का पार्ट कंप्लीट करूंगा, तो प्लीज। Please Mohit. हाँ प्लीज, और जस्ट अ मिनट। सर अपना स्क्रीन ऑफ कीजिए एक बार। Just a minute. हाँ हाँ ठीक है। ऑलराइट, तो मैं बता देता हूँ आपको केवाईसी का पार्ट जो है वो कंप्लीट करना क्यों जरूरी है। ओके, देखिए, आपका मेल आईडी आपके खुद के पास है, नो डाउट, राइट। सबसे पहला इसका ऑथेंटिक प्रूफ होता है मेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर इसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता, क्योंकि कंपनी जितनी भी करस्पॉन्डेंस करेगी आपके साथ में वो मेल पर करती है, ना कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर। ओके, यूजर नेम किसी भी पर्सन का कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यूजर नेम अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल जो सबसे ऑथेंटिक चीज होती है जिसमें कि आप खुद को प्रूव कर सकते कंपनी के सामने that I am the same person who have paid the amount to buy the Vita share package. Okay, तो उसका सबसे आसान तरीका है केवाईसी पार्ट। और केवाईसी करना क्यों जरूरी है वो बता देता हूँ कि जब भी आप अपना केवाईसी करते हैं तो यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका ईडी के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, ओके, जिसको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या फिर प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रूफ हमारे पास ये है। ओके, विपुल जी। Just हाँ हाँ प्लीज, ओके कीजिएगा। ओके, हाँ, तो इसको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोला जा सकता है डेफिनेटली। और साथ में ये तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको क्लेम करना पड़ता है। ओके, क्लेम इन द सेंस जब आपका ये प्री आईपीओ स्टेजेस खत्म हो जाएंगे, राइट, और उस टाइम पे आपके पास में जो सर्टिफिकेट्स होगा, राइट, वो सर्टिफिकेट्स, विपुल जी फिर से एक बार जूम पर जाएंगे, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्लोज स्क्रीन का।
अभी अगर मैं स्क्रीन को शेयर करूं, विपुल जी दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? आप चेक करना एक बार। विपुल जी जस्ट अ मिनट। हाँ प्लीज वेट करना अभी थोड़ा सा ना। हाँ अनिल जी वेरी गुड वेरी गुड। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, ठीक है? ऑलराइट। तो अभी मैं स्क्रीन को, प्लीज आप वो वाली स्क्रीन सिलेक्ट कीजिएगा सभी लोग, जिस स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये वो स्क्रीन है। ओके, और मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करूंगा वो अब करूंगा मैं केवाईसी का पार्ट। ओके, तो केवाईसी किस तरीके से करते हैं? सभी लोग अपने जो भी न्यू एसोसिएट्स होते हैं, राइट, उनको ये केवाईसी करना जरूर आना चाहिए। ओके, तो मेरे पास में एक ऐसी ही आईडी है जिसका यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी सेव है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं इस आईडी को, मुझे केवाईसी कंप्लीट करना है। जस्ट सिंपल सा करना क्या होता है, जब भी हम शेयर पैकेज को बाय करते हैं तो सबसे पहले हमें 3 लाइंस पर क्लिक करके एडिट प्रोफाइल पे जाना होता है। ओके, और उस एडिट प्रोफाइल में यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये ऑथेंटिकेशन पेज है। ऑथेंटिकेशन पेज में सबसे पहली चीज होती है लॉगिन। जैसे कि मैंने बोला, जो आपका यूजर आईडी होता है दैट इज योर लॉगिन के अंदर आता है। फिर उसके बाद में मेल है, राइट। आप अपनी आईडी को यूजर नेम और मेल आईडी दोनों से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो जहां पर आपको ईमेल दिख रहा है ना, और जो मेल लिखा हुआ दिख रहा है, इसी के जस्ट नीचे कंफर्म ईमेल का एक ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं आपको एक मेल आता है रशियन लैंग्वेज में। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ब्लू कलर का एक लिंक होता है, जस्ट उसको क्लिक करना होता है और आपका ये मेल वेरीफाई हो चुका रहता है। ओके, तो यहाँ पर मेल ऑलरेडी वेरीफाई है, लेकिन हमें केवाईसी वाला पार्ट परफॉर्म करना है। तो हम लोग जाएंगे मेन इन्फॉर्मेशन में। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, नॉट एन इशू, राइट। तो ये है इसका मेन इन्फॉर्मेशन पेज। वेरिफिकेशन पार्ट है, तो क्या क्या फिलअप करना है वो हम एक बार देख लेते हैं, राइट। और जो ये पर्सन है उनके डॉक्यूमेंट्स भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं देवेंद्र कुमार। ऑलराइट, तो सरनेम इनका कुमार है, KUMAR, और नाम इनका DEVENDRA, देवेंद्रा। ऑलराइट, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, DEVENDRA। ओके, फिर उसके बाद में फिर से अभी आपका लैटिन में पूछता है, तो लैटिन में भी नेम आपका DEVENDRA देवेंद्रा। ओके, सरनेम में कुमार आ जाएगा, KUMAR। ओके, अब मिडिल नेम जिसका नहीं होता है, राइट, क्योंकि अगर आप कोई भी इसको ब्लैंक अगर छोड़ते हैं, राइट, तो ये वहां पर आपका एरर शो करता है। तो आप इधर डॉट डाल के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब इनका डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या है, 04011992। देख लेते हैं एक बार, 04011992। ओके, और हम लोग जो आइडेंटिटी जो इसमें अपलोड कर रहे हैं दैट इज आधार कार्ड। मतलब कि कोई भी इसमें देखिए दो चीजें, इंटरनेशनल पासपोर्ट, रशियन। ओके, अब रशियन इंटरनेशनल पासपोर्ट बोला गया, रशियन भी बोला गया है। तो अभी आपके पास में अगर पासपोर्ट है किसी भी कंट्री का, अगर आप जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, पासपोर्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी नेशनल आइडेंटिटी को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड भी आपकी नेशनल आइडेंटिटी है। ओके, तो आधार कार्ड में सीरीज नंबर नहीं होता है, तो जिसको हम लोग 00 फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसका नंबर जरूर होता है। ओके, तो वो नंबर क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। 7720 जो आपका आधार नंबर है वही वहां पर आपका नंबर आएगा, 7720। बहुत छोटा सा समय लगता है इसमें, 7720 3418 3418 0634 0634। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, 772034180634। ओके, और अच्छा अभी एक चीज देखिए, मोस्टली आधार कार्ड्स पर ध्यान से सुनिएगा, मोस्टली आधार कार्ड पर उसका इशुएंस डेट नहीं लिखा होता कि किस डेट को इशू होता है। ओके,
लेकिन ये पहला आधार कार्ड आया जिसपे इशू डेट लिखा हुआ है 30/9/2020। ओके, तो इस पे हम लोग इशू डेट में लिख देते हैं 30/09/2020, मतलब अपडेट किया होगा। अब ये डिवीजन कौन सा है? ओके, डिवीजन कौन सा होता है? जब भी हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, या फिर सिंपल सा अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इनका लाइव एड्रेस है। ओके, लाइव एड्रेस के अंदर अभी कंप्लीट आपको लाइव एड्रेस करना पड़ता है। ओके, जैसे कि केयर ऑफ इनका फादर का नाम, देन ये सब चीजें हमें फिलअप करना होता। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस ये 2 मिनट का काम है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सीओ, ओके, वेट फॉर अ सेकंड, जसराना रोड, राइट, प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिएगा। नागलापुर, पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस आपका एक ही में आएगा, ठीक है। जीरो, जस्ट अ मिनट। ओके, सारा का सारा एक बार टैली कर लेंगे सबमिट करने से पहले। ऑलराइट, देन उसके बाद मेन पूरी। ओके, फिर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आपका पिन कोड, एरिया पिन कोड 205121। फिर से इधर क्लिक करेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे 205121। ऑलराइट, ये हो गया, ठीक है। अभी कंट्री पूछेगा तो कंट्री में INDIA इंडिया, यहाँ तक तो ठीक है। ओके, अभी पूछ रहा है अपलोड दी फोटो। तो एक बार पहले जब हम अपलोड दी फोटो पे क्लिक करते हैं, राइट, तो हम लोग फाइल्स पे जाएंगे। ऑलराइट, अब फाइल्स पे जाकर जस्ट हम रिसेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो हमें पहले फ्रंट करना है। ओके, जस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले एक बार फ्रंट पे क्लिक किया, एक अपलोड हो गया, दोबारा से अपलोड पे क्लिक करेंगे, मतलब जो भी आप आइडेंटिटी डाल रहे हैं उसका फ्रंट एंड बैक दोनों आपका अपलोड होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें सेव करना है। तो जब हम सेव करते हैं तो सारा का सारा जो डिटेल्स है ये अभी आपका सेव हो गया। ओके, अभी आपका सेव हो गया, कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। सेव करने के बाद में आपको जैसे ही आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पे करते हैं, ओके, तो यहाँ से सारे के सारे ऑप्शंस नीचे से रिमूव हो जाएंगे। ओके, और वहां पर वेरिफिकेशन पे लिखा होगा वेटिंग फॉर रिव्यू। इसका मतलब अब ये बैकएंड पर चला गया है, बैकएंड वाले इसको जब भी क्लियरिफाई करेंगे, राइट, तो फिर उसका प्रूफ कहां पर आएगा, माई इन्वेस्टमेंट के अंदर। ऑलराइट, ये माई इन्वेस्टमेंट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर व्यू मोर पे जाना होता है। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा है योर सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, मतलब कि जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका ईडी के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जो भी हमने डिटेल्स फिलअप की हैं वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की पर उधर आ जाएगा। वेरिफिकेशन स्टेटस में भी आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर द रिव्यू लिखा हुआ है। ओके, तो ये था वेरिफिकेशन का पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक है। एस गुणाशेखर जी मोस्ट वेलकम है। विपुल जी एक बार फिर से माइक को अनम्यूट कीजिएगा। विपुल जी, ओके, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे सर। ओके, अब मैं आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूँ इसका एफिलिएट का। ओके, और उस एफिलिएट से जुड़ी हुई चीजें क्या क्या हैं, बहुत ही सिंपल एफिलिएट है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी हमें सब चीजें रिफर्निश करनी होती है, रिवाइज करनी पड़ती हैं। ओके, रिवाइज इसलिए ताकि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज अगर मिस हो रही होती है तो वो फिर से रिपीट हो जाता है, तो हम लोग अपडेट हो जाते हैं। और मैं वर्बली बता रहा हूँ, कुछ भी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम जो है
आपको एक चीज बताता हूँ मजे की, आपको सुन के गर्व होगा कि हम लोग एक कैसे ओनर के साथ में, कैसे सीईओ के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, डेनिस टैगलिन अपने आप में बहुत कैपेबल पर्सन है, ठीक है। मतलब कि वो पायलट प्रोजेक्ट अपने खुद से निवेश से भी खड़ा कर सकते हैं। मतलब कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट वो खुद से खड़ा कर सकते हैं। इतने कैपेबल वो हैं, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। ओके, लेकिन इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम रखा क्यों, उसका सबसे बड़ी वजह आप जानेंगे आज, जो कि एक सबसे बड़ा अपडेट भी है सभी लोगों के लिए। ओके, और इसको जानकर आपको प्राउड भी फील होगा। ऑलराइट, कहने का मतलब कि हम लोग अपने मार्केटिंग, मतलब इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए हम लोग न्यूज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो कब तक, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने भर, 6 महीने भर, उसके बाद में क्या। लेकिन फिर भी वो चीजें सामने तक नहीं पहुंचती। और अल्टीमेटली जब हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, जब हम इसकी बात करते हैं तो वहां पर किसी भी एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी टेक्नोलॉजी को आप इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को वहां पर समझना होता है, उसके लिए टाइम देना होता है। और आप 5 सेकंड, 10 सेकंड के एड में वो सारी की सारी चीजें नहीं शो ऑफ कर सकते, नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो दैट्स व्हाई अपनी टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम को इन्वेंट किया। और ना सिर्फ इन्वेंट किया, एक ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम जिसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं है, राइट, जिसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं है। आप अगर इन्वेस्टर के अंदर आना चाहते हैं, हाँ, लेकिन कोई भी इसके अंदर अगर कोई भी निवेश करता है या इसके एफिलिएट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो जानता है, चीजों को सीखता है और सिखाता है। और कहीं ना कहीं ये जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, ये उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके माइंडसेट को लोगों तक धीरे धीरे करके पहुंचा रहा है। ऑलरेडी सिस्टम को चलते हुए 3.5 साल हो चुके हैं, और अभी लगभग 2.5 साल और है। 2.5 साल ना भी कहें तो अभी दिसंबर पूरा बचा है, राइट। 5 महीने, वो 24, 29, 29 मंथ्स है अगर हम रोड मैप से काउंट करते हैं। ऑलराइट, 2023 18 में चालू हुआ था, राइट। 19, 20 और 5 साल इधर हो गया, राइट। मतलब टोटल 5 साल का एक पीरियड, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां पे हम लोग एक विटर की खुद के लिए एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं, जहां पर सब लोगों को पता है कि विटर क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये एफिलिएट प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। ओके, ये एफिलिएट प्रोग्राम आपको कहीं पर भी ये नहीं बोलता कि आप 1 डायरेक्ट करो या 10 डायरेक्ट करो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपना चुपचाप से शेयर पैकेज को बाय करके बैठ जाइए, राइट। जब इसका प्रॉफिट आना चालू होगा, आपको प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। उसमें आपको कहीं पर भी क्लेम नहीं करना कि मेरा प्रॉफिट शेयर नहीं आया या मेरा डिविडेंड नहीं आया। जब इसका लिस्टिंग होगा तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। इसके लिए आपको कहीं पर भी कंप्लेन करने नहीं जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर एक ऐसे वर्ग से आते हैं, एक ऐसे ग्रुप से आते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां पर हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ओके, तब यहाँ पर आपको और हमें एफिलिएट इसका करना चाहिए। जहां पर हमें, जब हम इसको लोगों तक साझा करते हैं, लोगों तक इसको पहुंचाते हैं, इसकी जानकारी देते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इनकम करने का एक अवसर प्रदान करता है इनका एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, तो वो कैसे करता है? जब भी हम इनकी दूरदर्शिता को, इनके मिशन को, इनके विजन को लोगों तक शेयर करते हैं, तो वो जब अपना पोर्टफोलियो बाय करते हैं, शेयर पैकेज को बाय करते हैं, तो वहां पर हमें फर्स्ट लेवल पर 10% का हमें कमीशन कह सकते हैं या एफिलिएट इनकम भी कह सकते हैं, वो हमारी जनरेट होती है। ओके, दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा कि इस एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर टोटल 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस 40% की इनकम को लेने के लिए
कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ तक कि जब आप उसको विड्रॉ भी करेंगे तब भी उसके ऊपर कोई फीस नहीं है। ओके, तो फर्स्ट लेवल पे 10% है, राइट। सेकंड लेवल मतलब जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, जो उसने आपको सॉरी आपने जिसको इंट्रोड्यूस किया है, वो जब किसी को अगर स्पॉन्सर करता है, राइट, वहां से भी इनकम आएगी 5%, राइट। देन उसके बाद में 2%। और फिर जब हम फोर्थ लेवल पे जब हम जाते हैं, और फिर नीचे 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 डेप्थ में कितना भी नीचे तक बिजनेस जाता है, राइट, उस बिजनेस का 23% के पार्टनर हम भी होते हैं, लेकिन वो 23% आपका लास्ट वाली आईडी, डेप्थ में जो लास्ट वाली आईडी है, वहां से लेके जो कंपनी की टॉप आईडी है, मैं मानता हूं कि डेनिस टैगलिन जो है उनकी मेन आईडी में भी हो सकती है, तो उस लास्ट आईडी से लेके उस टॉप आईडी तक वो 23% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो ये सिंपल सा एफिलिएट प्रोग्राम है। ओके, और विजनरी लोगों के साथ में जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो खुलने लगता है, राइट। हम लोग अपनी नैरो माइंड, जो हमारा संकरा माइंड होता है ना, उसको हम लोग ब्रॉड माइंड, मतलब उसको जो जैसे बोलते हैं ना, जैसे ट्रेन आपने सुनी होंगी, नैरो गेज की ट्रेन होती है, राइट। अभी फिर सारी की सारी जब वो इलेक्ट्रीफाई वाली ट्रेन में, रेल्स में कन्वर्ट किया गया, तो वो ब्रॉड गेज वाली लाइंस बन गई। तो अभी अपने आप को भी जो हमारी संकरी सोच है, राइट, नैरो माइंड जो है, उसको हमें ब्रॉड माइंड कर लेना है। ओके, और हमें भी वो सब कोशिशें करनी है कि जो जिस तरीके से डेनिस टैगलिन सोचते हैं, राइट, वो नहीं, अरे वो पुराना वाला दिमाग कभी भी यूज नहीं करना इसके अंदर। अगर आप कर भी रहे हो तो फैक्ट एंड फिगर्स पे हमेशा बात करनी है, कि सामने वाले से पूछने से अच्छा है कि पहले मैं उसको खुद से ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद से उसको रिसर्च करूंगा उस पर्टिकुलर चीज पर, तो मुझे मुझे मेरे अपलाइन से ज्यादा सुंदर आंसर मुझे मिलेगा, जो ना सिर्फ मुझे सेटिस्फाई करेगा, और जिसको भी मैं इसको बताने जाऊंगा उसको भी मैं काफी अच्छे से सेटिस्फाई कर पाऊंगा। ओके, एक कमेंट आया, कमेंट देख लेता हूँ। शेयर स्क्रीन। ओके सर, नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग करेंगे एफिलिएट प्रोग्राम के लिए स्क्रीन को। ओके, और मैं एक बार फिर से विपुल जी के पास जाऊंगा। विपुल जी के पास में कुछ अगर पॉइंट्स हैं तो वो एफिलिएट के बारे में वो बोल सकते हैं। विपुल जी प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। यस, वेलकम सर। अभी जितने भी हमारे सहपाठी बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है, तकरीबन काफी लोगों का ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि एक ये आप ऐसा कर सकते हैं उनको कि आपका ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इस मार्केटिंग के तौर पे आपका पोर्टफोलियो का सबसे बड़ी जो योगदान है, ये पोर्टफोलियो जो एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे आपका बन सकता है। तो मैं इतना से कहूंगा कि जो भी आदमी जो भी इस सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो उनको ये डिजाइन करना जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो के साथ में, क्योंकि बहुत ही ना भर के निवेश के साथ में आप यहाँ बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना ये होता है कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं यहाँ पैसा कमाना चाहता हूँ, साथ में यहाँ पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। उस कंडीशन में आपके पास में सबसे बड़ा जो एक गिफ्ट आइटम होता है कि केवल कुछ ही लोगों को, यानी कि 2, 5, 10 लोगों को यदि आपने प्रॉपर तरीके से इनकी जानकारी दे दी, तो उसी दिन से आपके पास में हो सकता है छोटा सा निवेश हो, मगर जिन लोगों को आप इस सिस्टम के अंदर लेकर के आ रहे हैं, उनके बदौलत जो हर बार वहां पर इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे या वन शॉट में इसको बाय करेंगे, तो डायरेक्ट का जो 10% है वो आपका पोर्टफोलियो ही जनरेट हो रहा है। तो वो पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक बार आप जरूर 10 लोगों को लेके आए या 5 लोगों को लेकर के आए, यदि सही तरीके से आपने उनको सपोर्ट कर दिया इस सिस्टम के अंदर, आप सिस्टम के अंदर जूम के अंदर बैठे और उनको भी जब भी बैठे तो आप अपने फोन पे ना लगा रहे, केवल उनको भी समझाते रहे किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है और आने वाला टाइम के अंदर हमारी पोर्टफोलियो प्लस इनकम दोनों चीज कैसे जनरेट होगी। यदि आपने परिवार की तरह उनको गाइड कर दिया, तो आपके यहाँ दोनों चीज ना के बराबर पैसा लगा करके भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ जनरेट कर पाएंगे और साथ में आपकी इनकम का भी रास्ता खुलता जाएगा। ये चीजें बेसिक क्लियर है। मगर हम बात करें कि ये एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। जितना ज्यादा हम लोगों को डुप्लीकेट करने पाएंगे, तो उतनी ज्यादा हमारे बिजनेस, स्टेबल बिजनेस की तरफ हम लोग
मूव कर पाएंगे। तो स्टेबल बिजनेस तब होगा जब आपके नीचे के लोग 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 रुपए महीने के कमाने लग जाएंगे। और यहाँ तो अनलिमिटेड है। यहाँ क्योंकि आप यहाँ पर पैसा कमा रहे डॉलर में, तो डॉलर का मतलब हो गया कि आप जानते हैं कि हम लोग यदि रुपए में पैसा कमाते हैं तो हम डॉलर के अकॉर्डिंगली पैसा को 70 गुना हम लोग आगे पैसा कमा रहे हैं। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए कि आप डॉलर में पैसा कमा रहे हैं तो आप 70 गुना हमारे इस सिस्टम के तौर पे कई गुना ज्यादा हमारी टाइम का भी बचत, पैसा भी कई गुना ज्यादा बड़ा यहाँ पर एक रूप ले सकता है। और ये इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट का मतलब हो गया ये मनी रोटेशन नहीं है, ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा खजाने की तरफ, एक पोर्टफोलियो वाला एक मनी मार्केट की तरफ इनको दे सकते हो। दुनिया के अंदर 70% जो लोग हैं वो मनी मार्केट के लिए काम करते हैं, चाहे उसमें बहुत सारी जैसे बैंक हो गया, उस तरीके से सारी जो इंडस्ट्री है एक तरह मनी मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। हमारी ये लीगल सिस्टम है, ये मनी रोटेशन का गेम सिस्टम नहीं है। इस 70% के अंदर यदि वाकई में आपको पैसा कमाना है तो पैसे की दुनिया में पैसे के साथ में खिलवाड़ करो। खिलवाड़ का मतलब यानी कि पैसे का जरिया बैठाओ कि पैसा काम कैसे करता है। आपको ये तो पता है कि हमारे शरीर में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, और आपको ये भी जानना जरूरी है कि पैसे का भी क्या क्या काम होता है, पैसे क्या क्या काम करता है, इनका क्या क्या काम है। यदि इन चीजों को आप सीख गए तो आपका पैसा दौड़ने लग जाएगा। तो मनी मार्केट का मतलब होता है पैसे को किस तरीके से चलाया जाता है, ये चलाना आप सीख गए तो आपके घर में पैसा बनना दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि पैसा बनाने से कोई रोक सके। ये इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी खूबी है। 40% जो इनकम हम लोग यहाँ जनरेट कर रहे हैं, मनी मार्केट का बहुत बड़ा एक योगदान आपके पोर्टफोलियो में और आपको एक संपत्ति बनाने में बहुत बड़ी योगदान आपको देने वाला है। और इसके साथ में किसी का कोई सवाल हो तो सवाल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी हमारा सेशन तकरीबन हम लोग 1 घंटा पूरा कर चुके हैं और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये पूरी है। और बाकी मोहित जी की तरफ से भी कोई सवाल हो तो प्लीज मोहित उनको कंप्लीट करिए, किसी का हो तो देख लीजिएगा। थैंक यू मोहित। थैंक यू वेरी मच विपुल जी। ओके, और हमारे दीपक बैरागी जी हैं, उनको मैं आंसर देना चाहूंगा। राइट, हमारे शेयर के फ्यूचर के बारे में बताइए। वेरी गुड सर। देखिए, अभी आप जो शेयर परचेज कर रहे हैं वो 20 पैसे 21 पैसे में परचेज कर रहे हैं। ओके, और जब तक इसका प्री आईपीओ स्टेज खत्म होगा, ठीक है, दिसंबर 2023, राइट, तब तक ये मान के चलिए कि हमारा 10 से लेके 25 रुपए के बीच में एक शेयर का भाव आ जाएगा। ओके, जब ये कंपनी अपना लिस्टिंग से पहले जब ये आईपीओ के अंदर जाएगी, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हर कंपनी आईपीओ में जाने से पहले अपना आईपीओ लॉन्च करती है, राइट। उसके बाद ही लिस्टिंग जाती है, उसके बाद ही आपका जो आईपीओ शेयर्स है या जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है। ओके, और ऐसा मुझे अनुमान है लिस्टिंग से पहले, मतलब आईपीओ फेज के अंदर ही, राइट, आईपीओ फेज के अंदर ही, मतलब प्री आईपीओ जैसे ही खत्म होगा उसके जस्ट बाद जैसे आईपीओ स्टार्ट होगा, तो वो आईपीओ वाले स्टेज के अंदर ये $1 से लेकर $10 के बीच में भी इसका शेयर का प्राइस जो है वो हो सकता है, राइट। और ऑब्वियसली जब ये लिस्टिंग में जाएगा तब तो डेफिनेटली क्या गारंटी है कि आपका ये $10 के आसपास का रेट आराम से पहुंचेगा, उसके लिए कहीं पर भी कोई भी संदेह नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके की है और कैसे काम करती है, कितनी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। ओके, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा आज के सेशन में कि आप अपना जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाएं, राइट। और अच्छा होगा कि जो भी आपके नियर एंड डियर वाले लोग हैं, जिनका भी आप सोचते हैं कि यार इसका अगर भला अगर मेरी वजह से हो जाए तो कम से कम उसको, चाहे भले वो कैपेबल ना हो लेकिन फिर भी उसको $100 का पैकेज लेके डलवा दीजिए, राइट। ऐसा करके भी हम लोग चीजें कर पाएंगे और एक अच्छे आसानी से हम लोगों का भलाई भी कर पाएंगे एक कम छोटे से बजट के अंदर, ऐसा। ओके, और चैट में लिखा है कि 50 लाख शेयर बनाने का टारगेट है। सर बिल्कुल होना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरा खुद का भी 1 करोड़ शेयर बनाने का है। पहले मैं 1 करोड़ शेयर
टच करूंगा, देन उसके बाद में मैं 5 करोड़ शेयर के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरा भी प्री आईपीओ स्टेज खत्म होने तक मैं भी 5 करोड़ तक पहुंच पाऊं। ओके, और जो मेरा 1 करोड़ शेयर का जो टारगेट है, ओके, मेरा जो 1 करोड़ शेयर बनाने का जो टारगेट है वो मुझे 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना है, राइट। और कब हो जाएगा मेरा 1 साल? 8 अप्रैल 2022 में मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा वीटर के अंदर। ओके, तो उससे पहले पहले मुझे मेरा ये 1 करोड़ शेयर का जो पोर्टफोलियो है वो मुझे 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। और फिर ले दे के जो बचेंगे 1.5 साल प्री आईपीओ स्टेजेस के, तो अगर मैंने 1 साल के अंदर इतना कर लिया तो डेफिनेटली अगले 1.5 साल के अंदर मैं 5 करोड़ भी बड़े आसानी से कर लूंगा। ऐसे ही खुद के लिए अपने बेंचमार्क रखिए, खुद के लिए अपनी एक लिमिट रखिए कि मैं अगर इस इतने टाइम में, राइट, इतने टाइम में अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया, राइट, तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगा, सक्सेस मानूंगा। अब उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है वो भी आप ही को डिसाइड करना होगा। ओके, सो आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी कि लास्ट में मैंने क्या बोला। उसी हिसाब से अपने लिए, खुद के लिए बड़े टारगेट्स मत रखिए, बड़े टारगेट्स को ब्रेक करना सीखिए। मतलब आप छोटे छोटे उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, शुभ रात्रि।